देखिए, इसका मतलब ये है कि उनके जीवन के साथ मोदी जी की सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। First of all, we were expecting that Mr. Nadda will come and announce the resignation of Dharmendra Pradhan. That did not happen. What is JP Nadda got to do with education? Is he a minister for education? This is a strange government. When a train accident happens, the defense minister comes. When there is a problem in the education ministry, health minister comes. And the prime minister stays silent. देखिए, ये 22 दिन अभी सत्र शुरू होने के पहले 22 दिन तक आंदोलन चल रहा था। उस समय दिल्ली की सरकार कहाँ पर थी? अगर वो उसी समय उनसे वार्ता कर लेते, उनके बीच का एक रास्ता निकालते, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करते, तो ये नौबत ही नहीं आती। देखिए, इसका मतलब ये है कि उनके जीवन के साथ मोदी जी की सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। 55 सांसदों ने अभी साइन करके शाम को पत्र दिया है उनकी पत्नी को, क्योंकि उनसे मिलने नहीं दिया गया, और काफी संख्या में सांसदों ने दिन में भी जाके पत्र दिया था। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर एक गहरी साजिश के तहत उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पत्र में क्या था? पत्र में तो रिक्वेस्ट थी कि भाई आप अपना आमरण अनशन खत्म कर दीजिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए, आपका जीवन अमूल्य है, जरूर देश के लिए जरूरी है। ऐसी अपील करने से आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो अमानवीयता का उदाहरण है। तो वही किया गया। उनकी पत्नी भी इस बात से काफी नाराज थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहीं भी पुलिस डिटेंशन की बात नहीं कही है, उनके अच्छा इलाज कराने की बात कही। First of all, we were expecting that Mr. Nadda will come and announce the resignation of Dharmendra Pradhan. That did not happen. Number two, what is JP Nadda got to do with education? Is he a minister for education? No. This is a strange government. When a train accident happens, the defense minister comes. When there is a problem in the education ministry, health minister comes. And the prime minister stays silent. Did Mr. Nadda address the fundamental question? Why are there paper leaks? Why is the government protecting Dharmendra Pradhan? Why was there a crackdown on the students on the streets of Delhi? Some of those students are in the ICUs in hospitals. Politicizing? Of course we'll politicize it. You tear the clothes of women. You fire pellet guns. You use shock batons. You lathi charge young people. You use water cannons on young people. And you expect us to keep quiet. What kind of an opposition do you want? You want an opposition which will be obedient to you. We are not Katputlis in their hands. Ask them to go and deal with those opposition parties who are their Katputlis, and we know who they are. Sir, he further says that Rahul Gandhi mentioned about 150 paper leaks. In Karnataka, the paper leak happened, but he is a very selective, and this is a matter of investigation. Mr. Nadda also said that they'll investigate whether they were 152 paper leaks, to be precise. So what have they been doing in the last 12 years if they don't even know how many paper leaks happened? Do you know 93 students have committed suicide over the last 5 years because of these paper leaks? 20 because of NEET. The fundamental issue here is that NTA is not a statutory body. If it were a statutory body, that would have come under the ambit of audit. It does not come under any audit. Because it is not a statutory body, it's registered under Societies Act, it cannot hire, it does not have permanent employees. Therefore, it resorts to giving contracts for paper leak, for paper setting, for transportation, for verification, for checking, everything. Printing, everything is a contract. And where do these contracts go? These contracts go to all the RSS companies. These are the beneficiaries. People who are close to the RSS, those companies will get all these. NTA is the biggest scam of this government. Did Mr. Nadda address the question of NTA? He is also going, oh, Rahul Gandhi is selective. What do you mean selective? NTA is something which we need to address. This scam needs to be exposed. सर, जेपी नड्डा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी की कुछ बातों पर उन्होंने ये कहा कि जांच का विषय है। पेपर लीक को जो लेकर कहा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो बहुत ही सेलेक्टिव है और राजनीतिकरण इस मुद्दे का कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए
पहली बात तो यह समझ में नहीं आता कि नड्डा जी का शिक्षा मंत्रालय से क्या काम है। यह सरकार बड़ी अनोखी सरकार है। ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं तो रक्षा मंत्री सामने आके जवाब देते हैं, पेपर लीक हो रहा है तो नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री आकर जवाब दे रहे हैं। ये कैसी, और प्रधानमंत्री चुप है ना, जवाब देते ही नहीं है, वो तो सवाल सुनते नहीं, जवाब देते नहीं, वो मन की बात करते हैं। ये कैसी सरकार है? फिर कहते हैं राजनीतिकरण नहीं करो। आप नौजवानों पर लाठियां बरसाओगे, लड़कियों के कपड़े फाड़ोगे, पैलेट गन्स चलाओगे, शॉक बेटन्स चलाओगे, वाटर कैनन चलाओगे, आंसू गैस, लाठी, सब कुछ करोगे और विपक्ष चुप बैठा रहे। आपको क्या एक पालतू विपक्ष चाहिए? तो पालतू विपक्ष तो आपको मालूम है ना कौन कौन सी पार्टियां जो पालतू विपक्ष हैं, करिए ना उनसे बात। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यह विपक्ष तो चुप नहीं रहेगा, यह विपक्ष आपकी बातों में नहीं आएगा। हम नौजवानों की आवाज उठाएंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। आप कहते हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं, जी हां, हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, ये 22 दिन अभी सत्र शुरू होने के पहले 22 दिन तक आंदोलन चल रहा था। उस समय दिल्ली की सरकार कहां पर थी? अगर वो उसी समय उनसे वार्ता कर लेते, उनके बीच का एक रास्ता निकालते, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करते, तो ये नौबत ही नहीं आती, ना लाठीचार्ज की नौबत आती, ना वो बदनाम होते। आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है और बदनामी सरकार की ही हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज सोनम वांगचुक से हम लोग मिलने गए थे, हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया? हम लोग को गेट पर रोक दिया गया। उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि उन्हें कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि उनके साथ किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। ये मुझे लगता है ये ज्यादती हो रही है और इससे सरकार और ज्यादा गलतियां करती जा रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, ये आंदोलन भी बंद हो जाएगा। उनसे वार्ता करें, उनकी मांगों को पूरी करें, क्योंकि आप जब सरकार में आए थे, इसी यूथ ने आपको वोट किया था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का नाम लेकर आप आए थे और इतने साल हो गए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, तो क्या उनके भविष्य को भी आप खराब कर रहे हैं?